اب آپ کو بتائیں کراچی سمیت سندھ بھر میں SHOs کے بار بار تبادلوں پر IG سندھ نے برہمی کا اظہار کیا اور تمام زونل DIG سے 3 روز میں وضاحت طلب کر لی۔ کراچی سمیت سندھ بھر میں تھانے داروں کی ٹرانسفر پوسٹنگ کے معاملے میں SOPs کی خلاف ورزی پر IG سندھ برہم ہو گئے۔ DIG سے وضاحت طلب کر لی۔ وضاحتی خط کی کاپی City 21 نے حاصل کر لی۔ IG آفس سے لکھے گئے خط کے مطابق جون اور جولائی کے دوران متعدد تھانے داروں کو مختلف وجوہات کی بنا پر ٹرانسفر کیا گیا، لیکن SOPs کے مطابق وجوہات نہیں بتائی گئیں، نہ ہی IG آفس کو اعتماد میں لیا گیا۔ SOPs کے مطابق کسی بھی SHO کو ایک مخصوص عرصے سے قبل نہیں ہٹایا جا سکتا۔ خط میں تمام زونل DIGs کو پابند کیا گیا ہے کہ وہ 2 ماہ کے دوران ٹرانسفر اور پوسٹ کیے گئے تھانے داروں کے حوالے سے مکمل رپورٹ دیں۔ 3 دن کے اندر اس معاملے پر پوری وضاحت کی جائے۔ ملیح جیل سے قیدی فرار، قیدی پولیس سے فرار ہوا، جیل سے نہیں۔ قیدی کے فرار ہونے کا مقدمہ شاہ لطیف ٹاؤن تھانے میں درج۔ مقدمے میں گرفتار 2 پولیس کانسٹیبل کو نامزد کیا گیا۔ قیدی جاوید چوری کے مقدمے میں گرفتار تھا۔ صوبائی وزیر جیل خانہ جات علی حسن زرداری معاملے سے لا علم نکلے۔ City 21 کے سوال پر کہا کہ مجھے کسی نے نہیں بتایا، مجھے میڈیا کے ذریعے آج علم ہوا۔ یہ جیل حکام کی نااہلی ہے، دل چاہتا ہے پورا عملہ معطل کر دوں۔ جیل حکام کیسے کہہ رہے ہیں کہ پولیس سے فرار ہوا؟ میں اس معاملے کی تحقیقات کروا رہا ہوں، جو بھی معاملے میں ملوث ہوا اس کو معطل کیا جائے گا۔ واقعے کا مقدمہ شاہ لطیف تھانے میں درج، 2 پولیس اہلکار گرفتار ہیں۔ اور جشن آزادی کی آڑ میں ہلڑ بازی نہیں چلے گی، ون ویلنگ یا ہوائی فائرنگ کی تو مقدمہ درج ہوگا۔ کراچی پولیس چیف نے سخت کارروائی کے احکامات جاری کر دیے۔ قانون کی خلاف ورزی پر منچلوں کے خلاف سخت کارروائی کی ہدایت کر دی۔ خصوصی آزادی ٹرین کراچی سے تھر پارکر کے لیے روانہ۔ شرجیل میمن اور ذوالفقار شاہ نے آزادی ٹرین کا کینٹ اسٹیشن پر افتتاح کیا۔ ٹرین حیدرآباد اور میرپور خاص اسٹیشن پر رکے گی۔ ٹرین سفر مکمل کر کے کل شام 7 بجے واپس کینٹ اسٹیشن پہنچے گی۔ ٹرین کو قومی پرچموں اور تحریک آزادی کے بینر سے سجایا گیا۔ فنکاروں کی شاندار پرفارمنس، 78 پاؤنڈ کا کیک بھی کاٹا گیا۔ رواں سال جشن آزادی اور مارکہ حق بھرپور انداز میں منانے کا سلسلہ جاری۔ کراچی کینٹ اسٹیشن بھی آزادی کے نعروں سے گونج اٹھا۔ ڈھول کی تھاپ پر رقص، شہری جھوم اٹھے۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن نے پیتا کاٹ کر خصوصی آزادی ٹرین کا افتتاح کر دیا۔ صوبائی وزیر نے کینٹ اسٹیشن پر 78 پاؤنڈ کا جشن آزادی کیک بھی کاٹا۔ قومی پرچم اور تحریک آزادی کے بینر سے سجی آزادی ٹرین کراچی سے تھر پارکر کے لیے روانہ ہوئی۔ فنکاروں نے شاندار پرفارمنس دکھائی۔ میڈیا سے گفتگو میں سینئر وزیر شرجیل میمن اور وزیر ثقافت و سیاحت ذوالفقار شاہ نے کہا کہ آزادی ٹرین پوری دنیا میں پاکستان کا مثبت چہرہ دکھائے گی۔ مسافروں کے لیے بارڈر پر جا کر آزادی کا جشن منانا منفرد ہوگا۔ جب ہم 1 دن کی دوری پہ ہیں اپنے یوم آزادی منانے میں، اس دن میں انڈیپینڈنس ڈے کے ہم سب کو مل کر یہ پیغام دینا چاہیے کہ صرف اس 14 اگست کو ایک ہی پیغام ہو، وہ ہو یونٹی یونٹی یونٹی، کیونکہ ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی ہمیں ڈسپلن، یونٹی اور فیتھ کی بات کی تھی۔ ٹرین میں سوار مسافر بھی پرجوش دکھائی دیے، کہتے ہیں کہ آزادی ٹرین کا سفر یادگار رہے گا۔ آج کے دن جا رہے ہیں تو ایکسائٹمنٹ زیادہ ہے کہ آزادی ٹرین آزادی کے دن میں چلی ہے۔ ابھی تو ہم نکلے ہیں، اب دیکھیں آگے کا سفر کیسا رہتا ہے۔ ابھی تک تو خوشی ہو رہی ہے، بچے بہت خوش ہیں، ہم بھی خوش ہیں۔ صوبائی وزراء کا کہنا تھا کہ ہمیں اپنی اختلافات بھلا کر تمام چیلنجز کا مقابلہ کرنا ہے۔ سندھ حکومت نے ہمیشہ غریب عوام کی بات کی ہے۔ سندھ حکومت ہر شعبے میں بہتری کی جانب گامزن ہے۔ عوام کو صرف سیاسی نعرے نہیں چاہیے۔ مارکہ حق اور جشن آزادی کی تیاریاں، سٹی کوٹ بھی سبز ہلالی پرچموں سے سج گیا۔ پاک لائرز فورم کے تحت یوم آزادی کی مناسبت سے تقریب ہوئی، جس میں وکلاء نے وطن سے اظہار یکجہتی کا اظہار کیا۔ جواد آصف کی رپورٹ۔ ملک بھر کی طرح کراچی کی عدالتوں میں بھی یوم آزادی کی تقریبات، سٹی کورٹ کو بھی قومی پرچموں سے سجا دیا گیا۔ وکلا برادری بھی پاکستان زندہ باد کے نعرے لگاتی ہوئی دکھائی دی۔ پاک لائرز فورم اور کراچی بار ایسوسی ایشن کی جانب سے آزادی سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ پروگرام میں مرد و خواتین وکلا پرجوش نظر آئے۔ وکلا نے بھی پرجوش انداز میں خطاب کر کے لہو گرمایا۔ کہتے ہیں آزادی ایک نعمت ہے جس پر ہمیں فخر ہے۔ 14 اگست 1947 جو ایک ہسٹری رکھتا ہے ہم تمام پاکستانیوں کے لحاظ سے کہ پاکستان جس طرح جس کاوشوں سے جس قربانیوں سے حاصل کیا گیا، اس کے ساتھ جو اقلیتی قومیں تھیں ان کو بھی پورے حقوق دیے گئے۔ اس ریاست پاکستان سے محبت ہمارا فرض ہے، نہ صرف فرض ہم پر قرض ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح ایک ماں کا
हम बेकर्ज हैं। प्रोग्राम में मुनीर मलिक, नईम कुरैशी, पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के फैसल नदीम आवान समेत वकला की बड़ी तादाद शरीक थी। कैमरामैन काशिफ के साथ मोहम्मद जवाद आसिफ, सिटी 21। डिस्ट्रिक्ट मलिर जेल में भी जश्न आज़ादी और मार्का हक की खुशियाँ जोशो खरोश से मनाई गईं। सूबाई वजीर जेल खानाजात, IG जेल खानाजात और आला अफसरान ने शिरकत की। कैदी मिली नगमों की धुन पर झूमते रहे। तफसीलात उसामा मलिक की रिपोर्ट में। मुल्क भर में जश्न आज़ादी मार्का हक की तकरीबात जारी हैं। डिस्ट्रिक्ट मलिर जेल में भी कैदी इस खुशी में शरीक हुए। जेल इंतजामिया ने कैदियों के लिए खुसूसी प्रोग्राम का एहतमाम किया। तकरीब से खिताब में सूबाई वजीर जेल खानाजात अली हसन जरदारी ने कहा कि कैदियों की सजाओं में कमी के लिए इकदामात जारी हैं। जेल को दर्जगाह का दर्जा देने की कोशिश की जा रही है, ताहम वो गुज़िश्ता रात एक कैदी के फरार होने के वाक़ये से लाइल्म निकले। मैं ये कहूँगा कि मेरी और पुलिस इंतजामिया की नाअहली है और मेरे जेल वाले जो हैं, ये DIG साहब खड़े, मुझे बताया नहीं, मैं आज अखबार में पढ़ा, और मेरा तो जी चाहता है जितना अमला है उसको सस्पेंड करके जाऊं। पहले तो उन्होंने बताया नहीं और मुझे आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं कि सर 3 डोर तो थे आपके, उससे वो फरार हो गया। IG जेल खानाजात सिंध फिदा हुसैन मस्तूई ने जेल में जारी तरक्याती कामों पर सूबाई वजीर का शुक्रिया अदा किया। बोले, जब तक कौम मुत्तहद है कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। सबसे पहले पानी के मसाइल हैं हर जेल पे तकरीबन है, थोड़े बहुत यहाँ एक्यूट मसला था, तो उसके लिए हमने 4 इंच पाइपलाइन का अभी मिनिस्टर साहब ने इफ्तिताह किया, और ये देरीना मसला था लास्ट 15 ईयर्स से, तो उन्हीं की कोशिश से मिनिस्टर साहब ने ये लाइन मंजूर करवाई और आज उसका इफ्तिताह किया। जश्न आज़ादी मार्का हक की इस तकरीब में कैदी जहां खुश नजर आए, वहीं अपने प्यारों की याद में आबदीदा भी हुए। कैमरामैन इमरान अहमद के साथ उसामा मलिक, सिटी 21। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड भी जश्न आज़ादी मार्का हक भरपूर अंदाज में मना रहा है। इस हवाले से जिला वस्ती में खुसूसी सरगर्मियों का एहतमाम किया गया। रिजवान अहमद की रिपोर्ट। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड जिला वस्ती की जानिब से जश्न आज़ादी मार्का हक की खुशियाँ भरपूर अंदाज में मनाई जा रही हैं। इस सिलसिले में राशिद मिनाज रोड पर खुसूसी कैंप लगाया गया, जहां आवाम में कौमी परचम तस्लीम किए गए। डिप्टी डायरेक्टर नोमान वहीद ने कहा कि जश्न आज़ादी इस बार मार्का हक की कामयाबी की वजह से पहले से ज्यादा जोशो खरोश से मनाया जा रहा है। मार्का हक माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेशन जारी है। पूरे कराची में सॉलिड वेस्ट भरपूर तकरीबात कर रहा है। इसी तरह डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में हम खास तौर पे हमने ये अपना मरकजी कैंप लगाया है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर, जिसपे हम मुख्तलिफ तकरीबात कर रहे हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर गुलबर्ग जोन सिकंदर बजरानी का कहना था कि जैसे सॉलिड वेस्ट सफाई करता है, वैसे ही पाक फौज ने दुश्मन का सफाया किया है। इस कामयाबी ने आज़ादी की खुशियों को दोबारा कर दिया है। इस बार जो है ना हमें इतनी खुशी है कि हमारे जवानों ने, हमारे जो है ना फौजी अफसरान ने ऐसा मजा चखाया है इंडिया को कि इस मुद्दत तो याद रखेगा। इस बार खुशी का जो है ना हमारा जो है ना पैमाना आप खुद देख रहे हैं, दोबाला कर दिया है। हमारी पाक आर्मी ने दुश्मन फौज को जो है ना सफाया करके और हमारा नाम और हमारा सर फखर से बुलंद कर दिया है। पाकिस्तान अवाम और पाकिस्तान आर्मी के लिए जिंदाबाद, और पाकिस्तान हमारा पाइंदाबाद, पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद। सिंध सॉलिड वेस्ट जिला वस्ती के अफसरान का कहना था कि जश्न आज़ादी के मौके पर आवाम को साफ और खुशगवार माहौल फराहम करने के लिए खुसूसी इकदाम किए गए हैं। कैमरामैन अजलान चीपा के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। जश्न आज़ादी मार्का हक की मुनासबत से शहर भर में जश्न का समा है। डायरेक्टर जनरल वजारत खारजा, अतालवी और डियावरी कोस्ट के कौंसल जनरल एक छत तले जमा हुए। सफारतकारों ने जश्न आज़ादी को गर्मा गर्म पकवानों के साथ एंजॉय किया। सैयद जुबैर राशिद की रिपोर्ट देखिए। मार्का हक जश्न आज़ादी, मुल्क भर में रौनक उरूज पर, 400 खुशियाँ, जश्न का समा। मार्का हक जश्न आज़ादी चटपटे चटखारेदार पकवानों के संग कराची में सफारतकार और ब्यूरोक्रेट्स की खूबसूरत शाम सजी, जिसमें साबिक निगरान वज़ीर सकाफत जुनेद अली शाह, अतालवी कौंसल जनरल फेब रिजव बेली, फरहान ईसा समेत दीगर मौजूद शख्सियात शरीक हुई। मेहमानों की तवाज़ो रिवायती पाकिस्तानी खानों से की गई। मेहमान खुसूसी डायरेक्टर जनरल वज़ारत खारजा इरफान सुमरो ने कहा, मार्का हक और बातिल की जीत है। 14 अगस्त एक कैलेंडर पे डेट नहीं है, बल्कि एक सेलिब्रेशन है हमारे प्रिंसिपल्स की। इसके पीछे एक सैक्रिफाइसेस हैं, इसके पीछे एक कायद-ए-आज़म की विजन है, अल्लामा इकबाल का ख्वाब है। डियावरी कोस्ट के आज़ादी कौंसल जनरल फजल करीम दादा भाई और गवर्नर सिंध के एडवाइज़र तारिक मुस्तफ़ा ने कहा, पाकिस्तानी कौम के जश्न में 500% ज़्यादा जज्बा है।
हर शोबे से लोग जो हैं वो बढ़ चढ़ के जो है इंडिपेंडेंस की सेलिब्रेशंस को मना रहे हैं और आज भी हम यहाँ पे गैदर हुए हैं और हम अपनी अफवाज की कामयाबी को, अपनी हुकूमत की कामयाबी को और अपने अवाम की खुशी को बहुत पुरजोर तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं। मुंतज़मीन ने बताया कि इशाइये के मकसद मार्का हक और जश्न आज़ादी को एक छत तले अपनों के साथ मनाना है और एक मार्का हक की कामयाबियाँ भी, 14 अगस्त की भी मुबारकबाद भी और फिर इनका आना, तो ये जो कॉम्बिनेशन बना है बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन बना। तकरीब के अख्ताम पर मेहमान गिरामी को गुलदस्ता पेश किया गया। कैमरामैन मोहम्मद रमीज के साथ सैयद जुबैर राशिद, सिटी 21। अब आपको बताएं, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल की तजवीज़। डीजल 11 रुपए 75 पैसे सस्ता, पेट्रोल 1 रुपया 32 पैसे महंगा करने की तजवीज़। मिट्टी का तेल फी लीटर 6 रुपए 25 पैसे सस्ता करने की तजवीज़। मंजूरी के बाद नई कीमतें 16 अगस्त से नाफिजुल अमल होंगी। गैस और बिजली के मसाइल से निजात पाना शहरियों के लिए ख्वाब बन चुका है। मुख्तलिफ इलाकों में गैस प्रेशर में कमी और बंदिश समेत बिजली की लोड शेडिंग की शिकायत बरकरार हैं। मवाज कोट, लांढी, औरंगी, कोरंगी समेत मुख्तलिफ इलाके मुतासर हैं। शहर कायद में गैस और बिजली की फराहमी में तातुल का सिलसिला बदस्तूर जारी है, जिसके बायस शहरियों को रोजमर्रा अमूर की अंजामदही में शदीद मुश्किलात का सामना है। शहरियों के मुताबिक रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक गैस की फराहमी मुकम्मल तौर पर मुअत्तल रहती है, जबकि दिन के औकात में भी प्रेशर की कमी और गैस की दस्तयाबी एक बड़ा मसला बनी हुई है। नॉर्थ नाज़िमाबाद में स्कूल वैन की रिक्शे से टक्कर का मामला वाकया गुज़िश्ता रोज पेश आया। जिला सेंट्रल पुलिस ने स्कूल के बच्चों को छोड़कर फरार होने वाले वैन ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। वाक़े का मुकदमा जख्मी रिक्शा ड्राइवर की मुद्दत में दर्ज कर लिया गया। SHO हैदरी अदील के मुताबिक हादसे में वैन में मौजूद तालबा भी जख्मी हुई। तलबा लियाकत नेशनल अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। तालबा के हाथ पर फ्रैक्चर आया, जबकि सर पर चोट भी लगी है। वैन ड्राइवर गफलत और लापरवाही से गाड़ी चला रहा था। कारोबारी हवाले से खबर शामिल करें। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान रहा। 100 इंडेक्स में 476 पॉइंट्स की मंदी रही। 1,46,000 की सतह पर बंद हुआ। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार मंदी का शिकार। 100 इंडेक्स 476 पॉइंट्स की कमी के बाद 1,46,529 की सतह पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान सबसे बुलंद सतह 1,47,892 रिकॉर्ड की गई। साबिक डायरेक्टर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज अमीन यूसुफ ने कहा है, तमाम माशी अशारिये मुस्बत हैं। हुकूमत की मौसर पॉलिसियों के बाइस सरमायाकार अब भी मुतहर्रिक हैं। प्लस बहुत सारी चीज़ें जो गवर्नमेंट ने की हैं, इम्प्लीमेंट की हैं, वो कभी भी नहीं हुई। उसकी वजह से आप देख रहे हैं मार्केट में जो है इन्वेस्टर आ रहा है, उसको पता है कि मार्केट ने ऊपर जाना है, चीज़ें और बेहतरी की तरफ जा रही हैं। प्लस आपके रिजर्व्स भी बढ़ रहे हैं, आपके पास लग रहा है कि एक्सपोर्ट्स भी आपकी बढ़ जाएंगी। जो आपके इश्यूज आ रहे थे, सर्कुलर डेट का भी था, प्लस सर्कुलर आपका सरप्लस भी आएगा मुझे लग रहा है। इस साल भी अगर आप टैक्स कलेक्शन भी आपकी ज़्यादा हो रही है, तो बहुत सारी चीज़ें अक्रॉस द बोर्ड है कि हर जगह गवर्नमेंट हर महाज पे काम कर रही है, आप कह सकते हैं। माहिरीन मईशत का कहना है कि 14 अगस्त की तातील के बाइस सरमायाकारों की जानिब से मुनाफा समेटने के रुझान के बाइस मार्केट मंदी की जद में आ गई। कैमरामैन हसनैन जाफरी के साथ काविश मेमन, सिटी 21।